Yeah, good afternoon. Done, sir. Yes, sir, Sanjeev sir. Yeah. Good afternoon, ladies and gentlemen, my dear participants, and all the invited guests. I, Dr. Narendra Gangwar, on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Khelo India, Sai LNC Trivandrum, would like to extend my hearty thanks to all the participants, and I would like to share my sense of gratitude to welcome our eminent speaker for the session, Dr. Biren Jhanjria. He is from LNIP Gwalior. He is working as an assistant professor, Department of Exercise Physiology, Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior. He has more than 16 years of teaching training experience in the field of physical education. He has also done international coaching diploma in general conditioning from Budapest, Hungary, instrumental in development of physical education curriculum, PE cards for CBSE schools, served as expert committee member. He also served as resource person for development of physical health and fitness scorecards under the campaign of Swasth Bachche Swasth Bharat. Sir has delivered more than 200 lectures and speeches as a resource person for various national, international conferences, workshops, refresher courses, orientation programs. Sir has published more than 30 research papers globally, national and international journals and proceedings. He is, for your kind information, he is also a professional squash player, represented Indian continent in World Master Squash Championship, Johannesburg, South Africa in the year 2016. Sir also was head coach of bronze medalist team in 68 Senior National Basketball Championship, December 2019. He has been awarded with Major Dhyanchand Award, Gala Utkarsh Khel Ratan Award for the promotion of sports coaching 2015 and 2016. So, Sir has also recently published a book that is for the competition preparation for CBSE examination, KBS, NBS, and UGC NET. So, without taking much more time, I would like to invite Dr. Biren Jhanjria, sir. Before that, I would like to welcome all the participants, those who are taking keen interest to join us and each and every session. And I would like to welcome our Principal Regional Director, Dr. G. Kishore, sir, who was very interested to attend all the session. Sir, we would like to welcome you, sir. And Mr. Sujit Panigiri, the man who is coordinating the whole program, is putting a lot of effort. Sir, welcome you. And my colleague, Dr. Sanjeev S. Patel, sir,
who's always with us to make this event success. So now I would like to over to Dr. Biren Jandaria, sir. Sir, please. Sir, sir, can you please unmute? Audio. Yes. Yeah. Good afternoon, everybody, and thank you very much, Dr. Gangwar, for providing an elaborate introduction about me. Thank you, Dr. G. Kishore, and all the panelists. And I welcome all the participants. And before I start my presentation, I hope all the participants are watching. Dr. Gangwar? Yeah, more than 1600 right now. Okay, thank you. So let us, because as it is a activity program, so let us start with a activity. So that can be a little bit of a ice breaking or a kind of warm up for the session. So I want all the participants to please join with me just for 1 minute for a small exercise. Okay, I want you to please rub your arms, rub your palms. Okay, good. Now I want you to put your index finger in front of your chest, not too far, not too close, like this. Okay. Now we'll be starting we'll be having 4 exercises with this. The first one is, let us start. Exercises. Can we do our exercises? This is 1. Next is exercises. Can we do our exercises? This is 2. Now exercise number 3. Exercises. Can we do our exercises? This is exercise 3. Now we'll do the exercise number 4. Exercises. Can we do our exercises? So these are the 4 exercises. Let us try to combine, so we can have the combination of all the exercises one by one in a continuous manner. Okay, starting from 1. Okay, so start. Exercises. Can we do our exercises? Can we do our exercises? Exercises. Can we do our exercises? Okay, the second exercise was changed by me. Let us do once again. First is this. Second is this. Third is cross. And fourth is this. Last time, let us practice. Okay? Ready? Start. Exercises. Can we do our exercises? 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 Wonderful. You can thank yourself if you have done well. This is a bit of coordination exercise that you can practice with your students. They will enjoy. I hope you have enjoyed this. So with this, let us start our today's session. Let me share the screen. Yes. So here we begin. Shall I? Yeah. Okay. So first of all, I would like to thank the Ministry of Youth Affairs and Sports and the team of Sports Authority of India under the able guidance of Dr. G. Kishore, Principal of the Sai Center and LNCP Trivandrum, for providing me this opportunity to interact with all the professional friends at the time of this pandemic situation. So this session is very much well connected with the previous session. Yesterday we had a session on
fitness and wellness by Dr. Usha and Dr. Jyoti. So they have very well organized, and that was a very good session. And this session is in continuation to that session. So you all know that World Health Organization has set guidelines for playing, providing at least 60 minutes of play to every child. That is the minimum. So if we want to achieve good health of our students, our kids, we need to provide at least 30 minutes of 60 minutes of play to our kids. That is the minimum benchmark that is set by WHO. So we need to keep in mind that we have to provide at least that much in our schools. And you all know that structural unit of human body is cell. हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है. वी लाखों करोड़ों सेल से हमारा शरीर बना है. और जिस तरह हमारा शरीर इन सेल से बना है, वैसे ही हम अगर टॉप परफॉर्मेंस की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एलीट परफॉर्मेंस, so that elite performance is made up of years of training, and that years of training has come up because of the different training cycles, and these training cycles has various training session plans. So today we'll be talking about the smallest unit of our training, that is the training session plan. We'll be talking about planning and executing a play session. Why we are talking about this, why it is so important, the planning and execution of the playing session, because the scenario of sports has changed. The student not only want to play, but he also want to enjoy the session. He wants a lot of satisfaction from that session. So that's why it is the duty of we all physical education teachers, we all coaches, we all trainers, that we should plan our session in such a way that the student feel motivated, the student feel satisfied, enjoyed, and at the same time he should have a lot of learning outcomes. So instead of simply playing, we should attach the learning outcome with that play session. That will be very beneficial for us. So here the session is basically divided into 3 components. So first of all, let me remove these pictures. Yes. First of all, we'll be talking about design and plan physical activity classes and sports events for the academic year. In the next, we'll be talking about age-appropriate resources and learner-specific requirements. And at the end of the session, at the last part, we'll be talking, that is again very important, concept of warm-up and cool-down, lead-up games, modified games, and small area games. Now I am putting in front of you a wonderful quote. So by the time you read this quote, let me put you in a situation where you ask a child to write an essay. Suppose you are asking the child to write an essay on my country, and the poor child, very vulnerable child, he do not know how to write the letters and how to make words from those letters, and then how to make sentence, paragraph, grammar, vocabulary. He don't know these kind of things. And we are putting a lot of pressure on him to write an essay. That is a very pathetic situation. Same most of the time happens in our sporting area. We don't have sound base. We don't have strong fundamentals for our kids. And we are expecting huge medals in the Olympics. So grassroots work is very much required. And this quote
is very much related to this situation, because a child, when he or she is in mother's womb, जब बच्चा माँ के पेट में होता है वहीं से उसके movements start हो जाते हैं. From there he start kicking. You might have observed many of the time. So play is a natural tendency of human being. Everybody wants to, child always wants to play. So what we as PET and coaches need to do, we need to incorporate some learning outcomes out of that play. So our theme will be for this session is how the child is engaged with lot of satisfaction, lot of enjoyment, and lot of learning outcomes, and within the limited time that they have with them. In school scenario, we don't get approximately 1 period. We are still fighting to the governments so that they provide at least 1 period every day, 1 class every day for physical education and sports. So we, with all of your efforts, we can achieve that that goal, or at least 1 period, at least 1 hour of activity every day. This is the minimum requirement by WHO. So let us see a wonderful video. Let us watch a wonderful video, and then we'll talk. सुखी मम्मी 5 मिनट प्लीज. हो धूप खड़ी है सर पे तो क्या हम जल जल के खेलेंगे, धूल पसीना मिट्टी मिट्टी हम तो सब कुछ झेलेंगे. बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, जो ठाना है उसे पाना है, बेहतर खुद को बनाना है. धूल पसीना मिट्टी मिट्टी हम तो सब कुछ झेलेंगे. बस आइए इन्हें खेलने देते हैं. ये आज और खेलेंगे तो कल और जीतेंगे. खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जहां इंडिया के हजारों युवा एथलीट्स खेलेंगे टू बी द धूल बेस्ट. पसीना मिट्टी मिट्टी हम तो सब कुछ झेलेंगे. बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट. आओ खेले भी. खेलो इंडिया. साथ में है हम. Okay, I hope you all have enjoyed with this video. You have enjoyed this video and you are a bit of energized. So the nature of play is very vulnerable. It is always 5 minutes more that you have seen in the video, and you might have observed during your school days and as a teacher also. when जब भी आप स्कूल में बच्चों को ग्राउंड पे खेलने के लिए भेजते हैं, प्ले फील्ड्स पे जब बच्चे जाते हैं, when you are asking them to come back, they always say कि सर प्लीज 5 मिनट और. घर पे भी मम्मी 5 मिनट और. तो what is this 5 minutes? This 5 minute more means child wants to play, and even we also, everybody, the humans wants to play. So the nature of play is very meaningful, joyful, engaging, interactive, and dynamic. That's why everybody wants to play more. And what we need to do, we need to find some ways during our school time. Suppose you are not getting, you may have constraints with you that you are not getting plenty of time in your schools. So this is your creativity, your convincing ability. You need to convince your authorities, your principals, that they should provide some time. At least you can get some time during your assembly time. You can get, even after the schools, you can ask the students to stay back and practice and play. Some means you need to use so that we can achieve this 5 minutes more concept in the school setting. Because school is an area, school is where kids, they spend a lot of time, their quality time, at least 7 to 8 hours, sometimes 10 hours they are spending in the school. So here we need to develop a culture of sports in the students so that they become a good citizen of the country. At the same time, they get fit, healthy, and they get
laurels for the nation in the form of medals. So with this, we are seeing the continuum of play. Continuum of play is very much required. Playful learning should always be in the form of transition. It should go from simple to complex. The child, first he comes into free play situation. What is free play? Free play is a situation in which child is his own boss. He is not governed by anybody. You might have observed, आपने घर पे भी बहुत बार महसूस किया होगा कि बच्चे इधर से उधर भागते हैं, घर में भागते हैं, कॉरिडोर्स में भागते हैं, ग्राउंड्स में भागते हैं, और उनके पास कोई रीजन नहीं होता, but still they are enjoying. Why? Because that is free play. So this free play, gradually we need to transfer into some kind of structured play or guided play, in which you provide little bit of supervision, little bit of directions that may be given by the parents, that may be given by your teachers, sometimes your elders, and they are put in under some conditions, little bit not very much structured, but they should enjoy also and they should learn also. Means, suppose you are asking a child to walk in a nursery, a child who is 5-6 years, if you are asking him to walk on a line, so he is walking on the line, he is enjoying that, and at the same time he is learning, yes, this is the line, and he is developing balance. You are asking him to walk in a snake-like style, zigzag. So he is walking like a snake. At the same time, he is learning what is snake, how the snake walks, and at the same time, he is learning dynamic balance. So this is the structured play. Now from structured play, he needs to be guided towards the next stage, that is the games. In games, you need to provide few games, exposure of few games, so that he learns to obey the rules and regulation. धीरे धीरे जैसे वो पहले फ्री प्ले में आया, फिर धीरे धीरे रूल्स को फॉलो किया, यहाँ पे जब गेम्स में गेम वो खेलेगा तो उसकी सोशल क्वालिटीज डेवलप होंगी, उसका बिहेवियर डेवलप होगा, कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, उसका काइंडनेस डेवलपमेंट होगा, फेयर प्ले डेवलप होगा. दीज आर द सोशल क्वालिटीज दैट वी आर अर्निंग फ्रॉम गेम्स एंड स्पोर्ट्स. तो और धीरे धीरे वो रूल्स एंड रेगुलेशन के प्रति भी उनको जानने में, उनको मानने में भी उसकी क्षमता बढ़ेगी, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी. तो वी नीड टू प्रोवाइड दिस ग्रेजुअल डायरेक्शन. एंड द नेक्स्ट स्टेज इज that is direct instruction, strictly under the guidance of a coach or a trainer, where he follow the instruction of the coach. So this is very important that this transition should take place, and it should be a long-term association. It should not be a few days or few months. It should start from the beginning and it should go up to the end of their year or end of their academic years in the schools. So, and next we'll be talking about the relationship of play and learning. The relationship of play and learning is well documented through various researches. We have n number of researches which says that if you play a sport, you have better grades in your academics. So physical active students, they are easy to manage because they have learned all the social skills, how to behave with their teachers, how to behave with their classmates, how to coordinate, how to adjust in different or odd situations. So a physically active classroom are easier to manage. Active school may have higher attendance and school completion rate. Yes, definitely we have research evidence which says this. Physical activity improve overall school performance. Today, the performance of school is not measured by only the academics. Today, the school performance is measured by their academics, their sports, their co-curricular activity. So many activities are involved. So we need to create such an environment in which the students are involved, means every activity, whether he is playing, whether he is singing, whether he is dancing, whether he is doing some debate competition, he is painting, he is learning
that kind of atmosphere we need to provide. So in nutshell, we can say the relationship of play and learning is very closely associated. So we need to convince our authorities regarding this, and first we need to convince ourselves, we need to convince the parents that play is as important as academics, play is as important as we are eating food. So we need to understand this concept. Now, play in school setting, you know, free play and PE class, these are two different scenarios. Free play is a condition in that is timeless. Student is playing, there is no foundation. But in class, is in physical education classes, you have strict गाइडलाइंस. आपको पास 40 मिनट है, 50 मिनट है, उसी के अंदर आपको आपके जो भी डिजायर्ड गोल हैं वो अचीव करने हैं. Then situation in free play is very chaotic, messy, loud. बच्चे दौड़ते हैं, भागते हैं, चिल्लाते हैं, कपड़े गंदे होते हैं. लेकिन अगर PE क्लास है, वहां पे आपको everything should be in order. सब कुछ आपको प्रॉपर ऑर्डर में रखना पड़ता है. Environment is fun but little bit of risk. Risk तो होता है खेल में, but लेकिन enjoyment, fun, satisfaction, that is more important. That we see in the free play. And but in PE class हम फोकस करते हैं कि चोट ना लगे, हम सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, ऐसे इक्विपमेंट प्रोवाइड करें जिससे बच्चों को चोट ना लगे. एंड टास्क, चिल्ड्रन आर themselves in charge of their own, nobody is their boss. But in PE class, their teacher, their administrator, their coach, he is governed the PE class. So play is, we need to incorporate play situation in PE class also. Now yes, प्रिंसिपल ऑफ प्ले, सिद्धांत, खेलों के सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना होगा. दिस इज एज इंपॉर्टेंट एज प्लेइंग इट. प्ले, खेल होना क्या चाहिए? खेल में फन होना चाहिए, इंजॉयमेंट होना चाहिए, रिक्रिएशन होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और एट द सेम टाइम वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाला होना चाहिए. हम हर क्लास के लिए हम अलग अलग हम प्ले सेटअप करें, अलग अलग हम एक्टिविटीज सेटअप करें उनकी एज के हिसाब से, ताकि उनके लर्निंग आउटकम बढ़े. तो लर्निंग आउटकम्स शुड बी एसोसिएटेड विद द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, हॉपस्कॉच, आप बगल में एक पिक्चर्स देख रहे हैं. यू कैन ड्रॉ हॉपस्कॉच ऑन द फ्लोर एंड यू कैन लीव द स्टूडेंट, दे themselves create so many activities, so their creativity can be developed. और अगर जैसे आपने बच्चों को हॉपस्कॉच बनाया और आपने कोई सर्कल, जैसे आजकल सोशल डिस्टेंसिंग में सर्कल बना रहे हैं, उसको भी बच्चे बहुत क्रिएटिवली, मैंने देखा है, उसको दे आर यूजिंग. तो अगर उनमें आप अल्फाबेट लिख सकते हैं या नंबर्स लिखते हैं, आपने सपोज किया नंबर लिखा 1 2 3 4 5 एंड यू आर आस्किंग द स्टूडेंट टू जंप every odd number or to jump on every even number. So what the student will do, he will jump on even number, so he will be jumping, so his leg strength is developed, and at the same time he is learning the difference between odd number and even number. So that's how we need to explore the potentiality of students learning. Next is the guided discovery, means we need to have clear and specific lesson plans. Clear and specific lesson plans are necessary so that you can save lot of time, because you get limited time for the students. So you need to have specific lesson plans for every class. Next, experience is very much important. Student should not feel bored. उसको बोरियत फील नहीं होनी चाहिए. वो क्लास में आता है तो उसको रोज एक तरह की एक्टिविटी नहीं मिलनी चाहिए. वो आ रहा है, उसको फुटबॉल दे दी. When we were in schools, we used to get a ball and teacher used to say, okay, play. बहुतों के साथ ऐसा हुआ है. But अगर ऐसा रहा तो we cannot change the scenario. Every day the student should have a sense of achievement. So he should have lot of choices. अगर आपने एक गेम प्लान किया है, उसके अंदर वैरायटी आपको देनी पड़ेगी, तब बच्चा खुश होगा. उसको एक सरप्राइज एलिमेंट आपको देना पड़ेगा. उसको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हमें PE क्लास में चलना है, पिछली बार हमें ये करवाया था, आज क्या होगा. ये क्यूरियोसिटी उसको क्लास में खींच के लाएगी. तो भी थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाता है. हमें उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें थोड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन को खड़ा करने के लिए हमें ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे.
So this variety of experience is required. And if we are providing variety of experience and students are feeling delighted and wonder, they will come to your classes regularly. And if they are coming regular to your classes, you can cultivate a habit, and that habit at the end will become the culture of play. And when this habit of culture is developed, the intrinsic motivation, the motivation from within start with the student. और जब बच्चा खुद से मोटिवेटेड हो जाएगा तो उसे फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है। वो पेरेंट से भी कहेगा नहीं मुझे स्कूल जाना है, आज हमारा इंपॉर्टेंट गेम है, आज हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। सो दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। नाउ we may have different constraints in different school. India is a huge country. कहीं पे हर जगह कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदी है, कहीं जंगल है, कहीं समतल है, कहीं बारिश ज्यादा है, कहीं रेत ज्यादा है, कहीं आइस है। तो वी हैव ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सो जो भी आपके पास कंस्ट्रेंट है, चाहे वेदर की है, चाहे इक्विपमेंट्स आपके पास हो सकता है इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं हो, स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं हो, यू नीड टू फाइंड सम वेज। आपके पास स्पेस नहीं है तो आई हैव सीन सो मेनी स्कूल्स, दे आर यूजिंग रूफटॉप एज देयर फुटबॉल फील्ड, दे आर यूजिंग देयर व्हाट वी से they are using parks nearby available to them, they are using basements for some kind of activity. So what we want from all these principles of play, we want that at every activity, after every session plan, the students say wow. This wow is a lot more appreciation for all of us. We want this wow feeling in every session. Okay, so we need to consider these principles. Now let us talk about barriers. We have different barriers. You want to conduct a very good class, but in conducting that class you may get certain problems. So I have a list of areas, barriers that hamper our program. First you are seeing facility. We just talk about the facility, space, equipment, timetable. We are not getting sufficient space in the timetable. Supporting staff we don't get sometime. So if you see that major 5-6 areas, these are the major barrier with most of the schools. Some schools they have facility but they don't have the space. Some schools they have the equipments but they don't have the space to use those equipments. Our government school they have huge space but sometimes they have scarcity of equipments. So what we need to do, we need to overcome with these barriers with our own creativity. हम अगर हमारे पास अगर सपोज गोल पोस्ट नहीं है तो हम कोन्स को यूज कर सकते हैं, कुछ स्टिक्स को यूज कर सकते हैं, कुछ बैम्बोज को यूज कर सकते हैं। हमारे पास अगर क्रिकेट बैट नहीं है, स्टैंडर्ड बैट नहीं है, तो हम खुद लो कॉस्ट बैट बनवा सकते हैं, एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए काम आ सकते हैं। सो वी नीड टू ओवरकम दिस बैरियर, क्योंकि वी कैन नॉट से कि हमारे पास तो ये नहीं था इसलिए हमने डेवलप नहीं किया। जो भी आज अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, वो चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे कोई भी एरिया हो, उन्होंने अपने आप को अगर इस्टेब्लिश किया है तो वो इन्हीं बैरियर्स के साथ आगे निकल के आए हैं। सो नाउ आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स, please you can write off the barriers you are box and so आप बॉक्स में लिखें। तो let us see कि क्या यही 5 हैं या प्लानिंग इज द की टू अचीव दिस बैरियर। आपके पास बैरियर्स हैं, आपके पास कुछ चीजें नहीं हैं, कुछ चीजें कमी है, लेकिन अगर आप एक अच्छी इफेक्टिव प्लान करते हैं, एक पूरा ओवरऑल एक बिगर प्लान बनाते हैं, छोटे छोटे प्लान उस बिगर प्लान के अंदर होंगे, अगर हम एक ओवरऑल अच्छा प्लान अगर हम बना लेते हैं तो हम इन बैरियर्स को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? वी शुड हैव ए लॉन्ग टर्म प्लान। हाउ दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज प्रिपेयर्ड, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स को हमें रखना चाहिए?
हम एक एनुअल प्लान बनाएं अपने स्कूल के लिए। उस एनुअल प्लान में हम छोटे छोटे और प्लान क्या क्या एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं, हम उसमें कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं, हम हमारी कौन सी टीम है जो बाहर खेलने जाती है, हमें उसको उसमें फोकस रखना चाहिए, वो कब जाती हैं, हमारे स्पोर्ट्स डे कब करना है, एनुअल डे कब करना है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। उसके लिए क्योंकि आपको इसकी बजटिंग भी करनी होगी, कहाँ से हम फंडिंग ले सकते हैं, क्या हम कहीं से स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, आपको ये चीज भी प्लान करनी पड़ेगी क्योंकि आजकल स्पॉन्सरशिप अगर आप एफर्ट लगाएं तो मिल जाती है आपको कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए। आपको अपने इंट्रामुरल्स प्लान करने चाहिए, आपको अपने टीचर्स के लिए कोई एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए, आपको इवन समटाइम पेरेंट्स को भी बुला के उनके लिए भी कुछ एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी चाहिए। बच्चों के लिए तो करनी चाहिए। यस काफी लोगों ने बड़े अच्छे चीज लिखे हैं। किसी ने गर्ल्स के ड्रेस कोड लिखा हुआ है, तो किसी ने वो लिखा हुआ है कि जो पीरियड वन पीरियड फॉर 4000 टीचर्स, 1000 बच्चों के लिए एक पी टीचर है। अच्छी चीजें लोगों ने काफी लोगों ने बहुत अच्छी चीजें लिखा हुआ है उसमें जी। तो आई थिंक सो पीपल आर थिंकिंग कि क्या है। सो काफी सारे पेरेंट्स का सपोर्ट लिखा है, जो हमने लिखा नहीं था तो वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो काफी अच्छा, काफी लोग लिख रहे हैं। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। इवन हम भी जिस स्कूल्स में पढ़े हैं, वी वर हैविंग ए स्ट्रेंथ ऑफ 2000 एंड वी वर हैविंग 1 पीईटी। सो हम उसको अभी फील कर रहे हैं कि एक पीईटी है, वो हमें, आप एक बॉल ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, खेलिए। वी स्टार्टेड द ऑर्गेनाइज्ड प्ले इन 10th क्लास। सो अगर आप 10th 11th में ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स में आएंगे तो फिर आप कब मेडल्स की तरफ जाएंगे। सो इस चीज को हमें, इन कॉन्स्टेंट्स से हमें निकलना है। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे प्लानिंग करें। हमें कुछ हेल्थ हैबिट्स को भी प्लान करना चाहिए, कुछ न्यूट्रिशनल हैबिट्स, कुछ हम ऐसे कैंप लगाने चाहिए, कुछ अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए, वो भी हमारा पार्ट ऑफ प्लानिंग होना चाहिए। हमें कुछ फन वीक्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। हमारा जो भी प्लानिंग हो दैट शुड मैच विद द नेशनल प्लान्स। जी, सीबीएसई कुछ स्पोर्ट्स करवाती है, सीबीएसई मीट्स होती हैं, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट्स होते हैं, उनको भी हमें हमारे प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फिट इंडिया स्कूल वीक ऑर्गेनाइज होता है, उसको भी हमें हमारे प्लानिंग में, हमारे कैलेंडर में रखना चाहिए। इंटरनेशनल योग डे है, नेशनल स्पोर्ट्स डे है, देयर आर लॉट मेनी एक्टिविटीज दैट वी शुड थिंक ऑन, और उसको केयरफुली हमें प्लान करना चाहिए। एंड दिस प्लानिंग इज नॉट डन बाय द फिजिकल एजुकेशन टीचर और कोच, लॉट ऑफ पीपल शुड बी involved, all the stakeholders. Who are the stakeholders? आपका प्रिंसिपल है, आपके सीनियर टीचर्स हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और जो लोकल अथॉरिटीज हैं, क्योंकि कभी कभार सपोज यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए क्रॉस कंट्री, तो आपको लोकल अथॉरिटीज से भी कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ता है। तो आप इन सब से मिलजुल के एक अच्छा प्लान करें, और जब आप सब लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाएगी। जब आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो दे ऑल विल एग्री। और वहीं अगर आप खुद प्लान बना लेते हैं और फिर आप उनको दिखाते हैं तो थोड़ी ईगो प्रॉब्लम रहती है। आपको पता है, आप अच्छे से डील करते हैं, तो उस ईगो प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वी शुड हैव ए humbleness to involve everybody in the process. Even the students can also be involved. Student leaders जो होते हैं उनको भी आप प्लानिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और वो कभी कभार बहुत अच्छे हमें आइडिया देते हैं, एंड दे आर good volunteers, good supporter for us. So we need to, so by seeing all these, we need to plan our, we need to have our annual plan, long-term plan. Now, after planning, how to design a physical activity program. This is a very important area that we all need to focus. For that, the PSP framework is, we can adapt that. It should be planned, sequential and progressive. प्लान के बारे में हमने बात किया कि जो भी हमारी नेशनल और स्टेट फ्रेमवर्क हैं उनको हमें प्लान करना चाहिए। जैसे जो भी हमारी नेशनल पॉलिसीज हैं, जो हमने अभी जिनके बारे में ऊपर बात की हमने, फिट इंडिया है, या फिर जो सीबीएसई मीट्स हैं, खेलो इंडिया के प्रोग्राम्स हैं, उन सबको हमें करके और कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम वी शुड हैव ए एनुअल प्लान। एक एनुअल प्लान को हमें डिजाइन करना चाहिए, एंड दिस प्लान शुड बी सीक्वेंशियल। what do you mean by sequential? Sequential means everything, we cannot have a
सिमिलर प्लान फॉर एवरीबडी, हर क्लास के लिए नहीं तो वी कैन डिवाइड एज अप्रोप्रिएट प्लान्स। आप कुछ क्लासेस को क्लब करके उनके लिए एक प्लान बना सकते हैं। आप प्री प्राइमरी के लिए एक प्लान हो सकता है, सेकेंडरी के लिए हो सकता है, मिडिल स्कूल के लिए एक प्लान हो सकता है, ठीक है, एक टीचर्स के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। तो दैट शुड बी ए ग्रेजुअल प्रोसेस। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट शुड बी प्रोग्रेसिव इन नेचर। जब हम फ्री प्ले की बात करते हैं और स्ट्रक्चर्ड प्ले की बात करते हैं, तो फ्री प्ले इज ए कंडीशन इन विच चाइल्ड इज चाइल्ड सेंटर्ड, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता, और वहां से वो बट ही इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर। तो हम डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ उनको ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चे अपना डिसीजन खुद लें। वो कई बार आपने देखा होगा कि कोच बाहर खड़ा रहता है, किक मारो, फेंको, बॉल उठाओ, अब बच्चा आपको सुनेगा या खेलेगा? ही शुड डेवलप ए इंडिपेंडेंसी कि वो अंदर जाए, खुद के डिसीजन ले, खुद के फैसले ले और खेले और परफॉर्म करे। That should be the progression from that is known as dependence to autonomy. The child should be autonomous to his own decisions. He should be able to take his own decisions. So this PSP model or PSP framework is very effective if you use in your settings. Now, SMART goals. What are SMART goals? You are seeing this picture on your screen. There are 3 kids. One is a high school kid who can jump 3 feet. Another can jump for 6 feet. Another a Olympic athlete, एक international athlete, वो 8 फीट तक जंप कर सकता है। तो हमारे जो भी गोल्स हों, हम बच्चे के लिए कोई भी गोल्स बनाएं, कोई भी उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेटअप करें, दे शुड बी स्पेसिफिक। वो अचीवेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, बच्चा उनको कर सके। हम ऐसे नहीं कि बच्चों को कहें कि आज बच्चे ने अगर 14 सेकंड में 100 मीटर की स्प्रिंट मारी, आप कहेंगे 10 दिन के अंदर हमें 12 सेकंड चाहिए। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। आप उसको ऐसे गोल दें जो वो अचीव कर सके, जो रियलिस्टिक हो। जो टाइम 10 दिन में पॉसिबल नहीं है तो आप उसको टाइम दीजिए कि हाँ, यू हैव एटलीस्ट 1.5 months टू अचीव दिस टारगेट। सो आवर गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, वेरी मच रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। एंड at the same time, we need to incorporate the feeling of commitment, enjoyment and voluntary effort in the students. बच्चे खुद से करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए, वो खुद से ग्राउंड पे आए। अगर आप कभी कभार आप फील्ड पे नहीं है तो भी, सपोज आप you have gone out and you are not in the school, तब भी बच्चे उसी एफर्ट के साथ उसको कर रहे हैं। That is required. That commitment we need to develop in the students. So अगर ये चीज डेवलप हो जाती है तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए क्वालिटी प्रोग्राम? एक अगर हम क्वालिटी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट। ये बच्चे की उम्र के हिसाब से प्लान होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई एक्टिविटी है जो एक छोटे बच्चे को आपने दे दी, लेकिन वो उसके बस की बात नहीं है, उसकी लिमिट्स से बाहर है, बियॉन्ड द लिमिट्स है, तो वो उसका डेवलपमेंट की बजाय उसका नेगेटिव एस्पेक्ट डेवलप होगा। वो एक दिन आपकी एक्टिविटी देखेगा, नेक्स्ट डे आपकी क्लास में आएगा और फिर धीरे धीरे वो डिटैच हो जाएगा। तो दैट डिटैचमेंट शुड नॉट हैपन। हमें उस एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग बनाना है, उसके लेवल के हिसाब से बनाना है। हम क्या करते हैं, बास्केटबॉल आपने देखा होगा, बास्केटबॉल का रिंग लगा है, ठीक है, या वॉलीबॉल का नेट लगा है, उस नेट की हाइट तक या उस रिंग तक बच्चे नहीं पहुंच पाते। तो आपको यू नीड टू इम्प्रोवाइज। आपको लोअर हाइट के रिंग या छोटे गोल पोस्ट, कुछ ऐसा इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए ताकि बच्चा आके उसके अंदर, अगर वो एक बार उसने बास्केटबॉल के रिंग में बॉल डाल दी तो ही फील ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो उसको एंजॉयमेंट आएगा, वो अगली बार आपकी फील्ड पे आएगा। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ the age appropriate outcomes so that the psychomotor, cognitive, social, emotional, all the important parameters can be developed. और उसी हिसाब से आपको एज अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज रखनी पड़ेंगे, इक्विपमेंट उसके एज के हिसाब से, पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का पार्टिसिपेशन भी उसी लेवल से होना चाहिए। प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फील्ड का कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास फुटबॉल फील्ड नहीं है या हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। देखो, जितनी बड़ी फील्ड होगी
और अगर एक क्लास में आपके पास 30 बच्चे हैं, आपने 15 एक साइड कर दिए, 15 एक साइड कर दिए और उनको कहा फुटबॉल खेलो, तो द फील्ड इज सो लॉन्ग, दे गेट लेस चांसेस टू टच द बॉल। वहीं आपने अगर फील्ड को छोटा कर दिया और उसी गेम को उन्हीं बच्चों के साथ खिलाया, तो वो बॉल को ज्यादा टच करेंगे, ज्यादा शॉट मारेंगे, ज्यादा किक करेंगे, ज्यादा रिसीव करेंगे, ज्यादा बार उनको अचीवमेंट होगा। तो इसलिए वो प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी उसकी इंक्रीज होगी। तो हमें हमेशा यही नहीं, आपके पास अगर एक फील्ड है तो आप उसको छोटा करके उसको यूज कीजिए। क्लास साइज को ध्यान में रखिए, क्वालिटी टाइम, आपके पास जो भी टाइम है उसको आप इफेक्टिवली यूज कीजिए। विनिंग शुड नॉट बी ए परमानेंट थिंग। बच्चे को आपको विनिंग की हैबिट नहीं डालनी है, आप उसको कहिए आप अपना पर्सनल बेस्ट दीजिए। सपोज पिछली बार आपने अगर 2 फीट जंप किया था, तो इस बार आपका टारगेट है 2.5 और 2.3। आप अपने आप से compete कीजिए। आप, हमें बच्चों को ये हैबिट नहीं डालनी है कि वो क्लास में जो बेस्ट बच्चा है, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट सेम, वेदर इट इज एकेडमिक, वेदर इट इज स्ट्रेंथ, वेदर इट इज एंडोरेंस, वेदर इट इज फिटनेस। There are students who are good in endurance, there are students who are good in fitness, there are good students who are good in coordination, some are good in speed, strength. तो आपको सिर्फ जो टॉप है हम उसी को शाबाशी देते रहते हैं, वेरी गुड, यू आर गुड, तो अदर्स फील नेग्लेक्टेड। वो किस में अच्छा है आप उस पर ध्यान दीजिए और आप उसके पर्सनल बेस्ट से कॉम्पीट करवाइए, ना कि जो क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है उससे कॉम्पीट करने की हैबिट नहीं डालनी चाहिए। फिर जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें फीडबैक इज वेरी मच एसेंशियल। फीडबैक नॉर्मली हम नहीं रखते हैं, हम सोचते हैं हमने प्रोग्राम बनाया तो अच्छा ही होगा, हमने प्रोग्राम बनाया तो हमारे थोड़ी सी हमारी भी ईगो होती है, हम दूसरों को सुनना नहीं चाहते। बट फीडबैक इज ऑलवेज टू इम्प्रूव योर प्रोग्राम। अगर हम उसमें हम्बलनेस लाएंगे तो हम अपने प्रोग्राम को इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एंड दैट फीडबैक शुड बी अबाउट द प्रोग्राम, from the students, about your instructions, from the parents। सब लोगों से आपको फीडबैक लेना है, अपनी अथॉरिटीज से फीडबैक लेना है, so that you can improve the programs, and this is how you can develop a quality program. Now, age appropriate activity, we need to have a lot of focus on age appropriate activities. And you are seeing, if you start from the bottom left of this slide, you are seeing pre-primary or primary। इस लेवल पे हमें उनको सिंपल बॉल देके आप चलो फुटबॉल खेल लो, ये सब नहीं करना चाहिए। दे शुड बी अंडर योर गाइडेंस। आप उनको फंडामेंटल मूवमेंट्स के ऊपर काम करवाइए, बिकॉज हम ये सिर्फ इंडिया में ऐसा कंडीशन होता है कि प्राइमरी टीचर को थोड़ा सा पेमेंट सैलरी कम होती है। अदरवाइज इन ऑल, आई हैव बीन इन हंगरी, बुदापेस्ट for 3 months for my international coaching diploma. वहाँ primary teachers are, if time permits, I can share one incident. Our coordinator in Budapest, Hungary, he was the coordinator of all international programs in Semmelweis University. One day we were asked to go for, हमें एक football match देखने जाना था, just before the World Cup. It was the match between Hungary and Germany. उस मैच को देखने के लिए वी वर, 1 महीने से प्लानिंग चल रही थी, हमारे पास इकट्ठे करे थे। हमारा जो कोऑर्डिनेटर था, ही वाज सो एक्साइटेड कि हमें वो मैच देखने चलना है। जिस दिन मैच था हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं और सडनली ही गॉट ए कॉल एंड ही सेड, डॉक्टर वीरेंद्र, आई हैव टू गो। मैं बोला क्यों? बोला आई हैव ए फुटबॉल मैच ऑफ माई नर्सरी क्लास। मैं बोला नर्सरी क्लास का फुटबॉल मैच? तो आप ये फुटबॉल जर्मनी और इसके बीच में जो फुटबॉल मैच है हंगरी के बीच में इतना इंपॉर्टेंट, आप छोड़ देंगे? बोले यस, दैट इज मोर, क्योंकि वहां से मेरे को सैलरी ज्यादा मिलती है। ही इज वर्किंग इन यूनिवर्सिटी फॉर द इंटरनेशनल कोर्सेज, ही इज गेटिंग लेस सैलरी, बट ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट ए फुटबॉल मैच ऑफ ए नर्सरी क्लास। दैट शुड बी द कमिटमेंट। तो वो कमिटमेंट अगर आता है तो we can think of better results. So we need to more concerned about the fundamental movement skills, development of fundamental movement skill. After that, modified and recreational game, that is little bit of structured way. And
After that, when we reach in upper primary, we need to develop multi sports engagement. बच्चे को कई गेम्स का एक्सपोजर लेने दीजिए ताकि उसका मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो। और फिर धीरे धीरे जब बच्चा और ग्रो करता है, क्लास 9 to 12 में पहुंचता है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में पहुंचता है, तब आप उसको कुछ मेजर गेम्स का एक्सपोजर करवाइए। और ये हम आपके और जो कमिंग सेशंस हैं उसमें प्री प्राइमरी का अलग एक करिकुलम हम डिस्कस करेंगे, अपर प्राइमरी का, सेकेंडरी का, उसमें एज अप्रोप्रिएट में आपके और डिस्कशंस होंगे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, वी नीड टू अडॉप्ट दैट। नाउ मेक ए एनुअल प्लान फॉर फिजिकल एक्टिविटी। दिस इज वेरी एसेंशियल कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूज करें, जो भी वेदर कंडीशंस हैं उसको हम समझें और फिर उसके बाद में हम उनको प्लानिंग करें। आप इधर अपने राइट साइड में देख रहे हैं कि वी हैव लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज। लोकोमोटर आपको पता है ये बेसिक फंडामेंटल डेवलप करने के लिए है, तो ये छोटे बच्चों के लिए है। इसको करवाने से आप क्या आउटकम बच्चे से चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वो he will be able to walk, उसका बैलेंस डेवलप हो, उसका कोऑर्डिनेशन डेवलप हो, उसको डॉजिंग सीख जाए वो दोनों साइड में, या फिर आप नेक्स्ट में जाते हैं तो डांस, जंपिंग रोप। आप एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 2 से 3 मिनट डांस कर लेना चाहिए, तो 10 मिनट ड्रिबलिंग करने उसका आना चाहिए, ठीक है। उसकी किकिंग अच्छी होनी चाहिए, उसको जिम्नास्टिक में है, उसको फ्रंट रोल, बैक रोल ये आने चाहिए। तो एक आप उसको ऑब्जेक्टिव दीजिए, आपका एक आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम होना चाहिए हर क्लास का कि हम इससे क्या उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। दैट शुड बी योर फोकस एरिया व्हाइल प्लानिंग एन एनुअल प्लान। Here we have the example of the weekly plans that you can plan for your various age categories. On the left side you are seeing this is a KG class fundamental movement system का एक प्लान बनाया है, जिसमें फर्स्ट वीक में कुछ एक्टिविटीज हैं, फिर सेकेंड वीक में ग्रेजुअली उन एक्टिविटीज में आपका वेरिएशन होना चाहिए। वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज वही करा रहे हैं, अगली बार उसमें थोड़ा सा चेंज लाइए ताकि बच्चा मोटिवेटेड फील करे, एंजॉयमेंट फील करे, सेटिस्फेक्शन फील करे। और हर क्लास, हर सेशन से पहले आप थोड़ा वार्म अप रखना बहुत जरूरी है आपको, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन इन द मसल्स कैन बी इम्प्रूव, आपके जो जॉइंट्स हैं वो लुब्रिकेट हो जाएं और बच्चे जो एक्टिविटी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। ऑन द राइट साइड यू आर सीइंग ए प्लान फॉर क्लास 5 to 6 फुटबॉल एक्टिविटी। इसमें आप कोई जरूरी नहीं है आपकी फुटबॉल की स्किल दें, एक वीक में आप फुटबॉल की स्किल रख सकते हैं, एक वीक में आप उसको फिटनेस कंपोनेंट्स को रख सकते हैं, कभी आप उनको सर्किट ट्रेनिंग बना सकते हैं उनको। लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट दैट एवरी सेशन शुड हैव 3 to 5 minutes of warm up and at the end we should have। सर ये स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं? वो नीचे जो है ना एक पैनल आएगा और वहाँ पे थर्ड फ्रॉम राइट उसी पैनल में उसी को माउस ले जाइए यहाँ उसके राइट वाला राइट नेक्स्ट वाला ये आया प्लीज। ओके आई थिंक ये इतना ही है। अच्छा ओके हाँ ये इतना ही हो सकता है। ओके Okay. So we need to have these kind of plans so that we can have a better and effective physical education program. Now you see we have a 40 minutes physical education period plan. एक क्लास को कैसे आपको प्लान करना है वो आपको ध्यान में रखना है, उसी के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। आप जब बच्चा आता है आपके पास तो किसी के पास 40 मिनट होते हैं, 50 मिनट होते हैं, जितने भी आपका पीरियड होता है। हम एक 40 मिनट को एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ही आपके पास, तो इसके ऊपर अगर आपकी पहले से प्लानिंग है, पहले से आपकी मार्किंग रेडी है, आपके इक्विपमेंट्स रेडी हैं, तो आप इसको और इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको 3 से 5 मिनट बच्चों को वार्म अप कराना चाहिए। ठीक है, वार्म अप में आप उसके जॉगिंग, रनिंग और स्टैटिक एंड डायनामिक स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग, स्प्रिंट, ये सब एक्टिविटी ले सकते हैं। उसके बाद लगभग मतलब आपका 80% ऑफ योर टाइम शुड बी यूज्ड फॉर द मेन एक्टिविटी। 10% आप उस वार्म अप के लिए रख लीजिए, 10% आप लिम्बरिंग डाउन के लिए रख लीजिए, लेकिन 80% ऑफ योर टाइम
approximately should be used for your main activity. तो यहाँ पे अगर बच्चों ने जैसे वार्म अप कर लिया है, तो अगर आपके पास 40 की क्लास है तो 10-10 बच्चों को आप डिवाइड कर सकते हैं. One group you can send to the kabaddi, one can go to the football, one can go for fitness circuit training, another can go for cricket. That you can design on your own way. So this is how you can provide plenty of opportunity, maximum experience, more variation to the students. और आप जैसे ये 4 एक्टिविटी में आपने इसको डिवाइड किया, फिर आपने 10 मिनट बाद में कहा ओके, ग्रुप ए विल गो टू द ग्रुप बी, ग्रुप बी विल गो टू द ग्रुप सी, ग्रुप डी विल गो टू ग्रुप ए. Like you can interchange, you can modify, so they can have experience of kabaddi, they can have experience of football, they can have experience of cricket. Likewise you can do. And last part of 3 to 5 minutes is for limbering down. Students should not go in a high breathe in the class. They should have limbering down, जिसके अंदर आप stretching use कर सकते हैं, full body की कुछ shaking movements use कर सकते हैं. ये this I should not tell, आप सब लोग एक्सपीरियंस हैं. मेडिटेशन कर सकते हैं, लाफिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग, ओम चैंटिंग कर सकते हैं. देयर आर मेनी वेज टू इम्प्रोवाइज. सो दिस इज हाउ वी कैन प्लान ए सेशन. नाउ यू नीड टू प्लान फॉर योर रिसोर्सेज. आपके पास रिसोर्सेज 4 तरीके से हो सकते हैं. आपके पास स्पेस कितना है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल क्या है, और आपके पास मैन पावर कितनी है, आपके पास टीचर कितने हैं, कोचेस कितने हैं, सपोर्ट स्टाफ कितना है. ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए आपको हमेशा स्मॉल एरिया गेम्स को आपको प्रेफर करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंगेज हो सकें. अवेलेबल जो भी इक्विपमेंट है उसको आप यूज करिए, और बाकी टीचर्स की आप हेल्प ले सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस, टाइम एंड इक्विपमेंट. दिस इज, यहाँ पे मैं आपको 2 वीडियोस के माध्यम से समझाना चाहूंगा. यहाँ पे 2 स्कूल्स हैं, 2 डिफरेंट, देयर आर 2 डिफरेंट सेटअप. एक सेटअप ऑन द लेफ्ट साइड यू आर सीइंग, उनके पास स्पेस बहुत है, और राइट साइड में स्पेस कम है, लेकिन इक्विपमेंट सेम है, टाइम भी सेम है. लेट अस सी हाउ दे आर यूजिंग दिस. See the level of enjoyment, and now see this one. So you are seeing we have to adjust. The same equipment is used in both situation. वहाँ पे space कम है, ज़्यादा है, तो आप जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आप यूज करके क्रिएटिविटी और फन और लर्निंग एक्सपीरियंस ला सकते हैं. यहाँ देखिए कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं. नाउ सी द अनदर 2 कंडीशन. यहाँ पे आप फर्स्ट वीडियो में देखेंगे, दिस इज ए काइंड ऑफ फ्री प्ले. ये दिस वी हैव टेकन फ्रॉम वन ऑफ द केंद्रीय विद्यालय, वेयर जहाँ पे उन्होंने कुछ, उनके पास वुडन लॉग्स पड़े थे, उनको उन्होंने वहां लगा दिया, कुछ रोप्स थी वो उन्होंने बांध दी, और स्टूडेंट्स आर देमसेल्फ वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर कर रहे हैं. यू सी दिस वीडियो, हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस.
Okay, so you know how the students are themselves, they are creating their own activity, they are enjoying. This is an example of free class or free play. Now see the structured class which is taken by the PE teacher or coach. Hey, don't stop talking here. Next step, painting. So this you can see how the available space or with limited resources you are doing the activities and how a structured class goes on. So this is how you can enhance the playing time. वो अपने रेगुलर टाइम में तो खेल रहे हैं, अगर आपने स्कूल में ऐसा कुछ सेटअप लगा दिए हैं तो वो अपने फ्री टाइम में भी they will be engaged in play. तो हमें स्कूल में ऐसी कुछ मार्किंग करके रखनी चाहिए, कहीं आपने कोई मार्किंग कर दी, कहीं आपने रोप लगा दिए, कहीं आपने साइकिलिंग ट्रैक बना दिए, कहीं आपने कुछ स्क्वायर्स बना दिए, तो बच्चे अपने आप ही उसमें एक्टिविटी करेंगे तो उनका प्लेइंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा. नाउ टीचिंग स्टेशन ऑर्गेनाइजिंग ऑप्शन. आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे क्रिकेट बहुत खेला जाता है, गली गली में आपको क्रिकेट मिल जाएगा. फुटबॉल आप कहीं भी देखेंगे, बच्चे 2 पत्थर रख के गली में फुटबॉल खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल के भी बहुत जगह आपको नेट्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेडियम नहीं है या पर हमारे पास ग्राउंड नहीं है. जहां आपको जगह मिले, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आप खेलिए, घर में जगह मिलती है घर में खेलिए, पार्क में जगह मिलती है पार्क में खेलिए, गली में खेलिए, बट यू हैव टू डू सम एक्टिविटी. आपको एक्टिविटी करनी चाहिए, चाहे वो फुटबॉल हो. तो हमारा फोकस होना चाहिए ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. जो भी आपके पास ग्राउंड है, सपोज आपके पास एक बास्केटबॉल कोर्ट है या फिर आपके पास सिर्फ इतना ही एरिया है कि आप वहां पे असेंबली करवाते हैं, तो असेंबली मॉर्निंग में हो गई, दिन में आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, आप उसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करें. अब यहाँ पे देखिए, सिंगल एक्टिविटी सिंगल स्टेशन. ठीक है, आपके पास 50 स्टूडेंट हैं या 25 स्टूडेंट हैं, आपने कहा कि चलो फुटबॉल ग्राउंड पे जाइए और एक बॉल दे दी, आधे 10 इधर 10 इधर और मैच खेल रहे हैं. या आपकी क्लास में अगर 50 हैं तो आपने 25 इधर कर दिए, 25 इधर कर दिए. दे वॉन्ट गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी. वो उनको उतनी अपॉर्चुनिटी खेलने की नहीं मिलेगी और दे फील डिसहार्टेंड, डिमोटिवेटेड एंड दे विल लीव द प्ले. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मल्टीपल एक्टिविटी विद मल्टीपल स्टेशन ये आप कर सकते हैं, या सिंगल स्टेशन, ये इसको हम समझते हैं अगली स्लाइड में, कैसे हम जो अवेलेबल एरिया है उसको हम यूज कर सकते हैं. सो मल्टीपल एक्टिविटी विद मल्टीपल स्टेशन. आपने अलग अलग एक्टिविटी प्लान कर दी. ठीक है, यहाँ पे फुटबॉल हो रहा है, यहाँ पे हॉकी हो रहा है, यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है, यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग हो रही है, आपने प्लान कर दी. लेकिन आप इसके अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सा स्पेस बचा है. तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट 3, यहाँ पे अगर 15 स्टूडेंट हैं तो उन 15 स्टूडेंट्स के पास ही एक बॉल से इसको पास किया, इसको पास किया, इसको पास किया. तो अगर पासिंग ड्रिल यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट के पास बहुत देर में बॉल आ रही है, तो आप यहाँ पे इनको जो अनयूज्ड स्पेस है इसके अंदर आधे स्टूडेंट्स को यहाँ भेज दीजिए और इनको आप कहीं जंप्स करवा सकते हैं या कोई अगर आपके दे सकते हैं. सो दिस स्पेस कैन बी यूज्ड एंड स्टूडेंट विल बी मोर इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज. फिर है मल्टीपल एक्टिविटी मल्टीपल स्टेशन. दिस कैन बी ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. ठीक है, यहाँ पे आपने अलग अलग एक्टिविटी दे दी. एक जगह सर्किट ट्रेनिंग चल रही है, एक जगह आपका पुशअप चल रहा है, एक जगह आपका हैंडबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कुछ भी, कोई भी एनी एक्टिविटी यू प्लान, कुछ भी. एक जगह आपका एरोबिक डांस चल रहा है. ठीक है, कुछ भी आप प्लान कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं. द अल्टीमेट एम इज टू प्रोवाइड मोर सेटिस्फैक्शन, मोर एंजॉयमेंट, more recreation, more fun, and at the same time learning objective. They should learn something. उनको कुछ सीख के जाना है. वो घर में जाएं तो बोलें कि हाँ आज हमने ये खेला है, आज वो ये ना कि हमने बास्केटबॉल खेला है, वो कहे आज हमने 10 किक मारे, आज हमने 2 शॉट मारे, आज हमने 4 कैच पकड़े.
ठीक है, तो इस तरह का उनका अचीवमेंट होना चाहिए. एवरीबडी, देयर शुड बी सम सेंस ऑफ अचीवमेंट इज रिक्वायर्ड. These are the various age appropriate equipments you are seeing. आप इन ऐसे ले सकते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, फंड्स अवेलेबल हैं, और अगर नहीं है तो यू नीड टू इम्प्रोवाइज. आप उनको इम्प्रोवाइज भी. ये देखिए, ये these are the list of equipments. यहाँ देखिए, आप एक टेबल को टीटी टेबल बना सकते हैं. These bottles can be used as cones. आप इनको कोन्स की तरह यूज कर सकते हैं. ये आप टेप से या कपड़े से बॉल बना सकते हैं. यहाँ पे देखिए, ये बच्चा ही इज रोप नहीं है तो बैम्बू स्टिक से ही इज प्रैक्टिसिंग स्किपिंग, जंपिंग. ये हॉपस्कॉच आपने मार्किंग कर दी और स्टूडेंट्स आर प्लेइंग. रोप्स कैन बी यूज्ड इन मेनी वे. सो you need to choose low cost or no cost equipment so that you can involve the students. ये देखिए, this is a wonderful example. आप इस तरह की मार्किंग अपनी स्कूल में करके छोड़ दीजिए. आपको कुछ नहीं करना, ये मार्किंग आप करके छोड़ दो. बच्चे अपने आप ही अपने क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ करेंगे. अपने फ्री टाइम में दे विल नॉट गो एनीवेयर एल्स. वो इधर उधर नहीं जाएंगे, इन प्लेसेस पे आएंगे एंड दे विल यूटिलाइज दिस मार्किंग एंड दे डेवलप देयर फिटनेस एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स of fitness. Now, people, we have talked about space, we have talked about equipments and time, and next is the people, your PE teacher, your coaches, your support staff available to you. तो जो भी आपके पास मोटिवेटेड टीचर हैं, जो भी आप, कई बार होता है स्कूल में, बिकॉज एवरीबडी हैज, चाहे वो मैथ्स टीचर हो, साइंस टीचर हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, अपने लेवल पे कभी ना कभी कोई ना कोई स्पोर्ट्स सभी ने खेला होता है. तो आपको ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए सो दैट यू कैन यूज देयर रिसोर्सेज फॉर योर क्लासेस. एंड दे शुड, वॉलंटियर्स भी होते हैं बहुत से, मेल एंड फीमेल. आपके पास फीमेल टीचर्स भी हो तो दिस इज ए बिट एडवांटेज, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा इंडियन कंडीशंस में ऐसा है कि पेरेंट्स आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद द मेल स्टाफ. ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ चीजें धीरे धीरे ही चेंज होती हैं. तो फीमेल टीचर हो तो ही विल बी मोर, दे विल बी मोर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड इन्वॉल्व. फिर आपको अपने पीई टीचर्स की, सपोर्ट स्टाफ की, कुछ फर्स्ट एड की, कोई लाइफ, क्योंकि कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स आपको पता है चैलेंजिंग है, इंजरी प्रोन है, चोट लगती ही है, खेलते हैं, तो आपको उनको इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए. और हर क्लास से पहले और क्लास के बाद बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि अगली क्लास में हम क्या करेंगे. तो बच्चों को पहले से पता है हम क्या करने वाले हैं, वो उसी हिसाब से अपना माइंड मेकअप करके आएंगे, तैयार होके आएंगे और आपकी क्लास इंटरेस्टिंग बनेगी. तो हर क्लास के पहले भी आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, बीच में भी आप दे सकते हैं, और लास्ट में भी आप इंस्ट्रक्शन दीजिए सो दैट द नेक्स्ट क्लास इज इफेक्टिव. तो अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें, टाइम भी होने का है, हमें क्वेश्चंस भी लेने हैं. तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए? प्लेफुल लर्निंग का कॉन्सेप्ट यही है कि खेलते खेलते आप सीखें. आपके खेल में फन होना चाहिए, इंजॉयमेंट होना चाहिए, रिक्रिएशन होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, बहुत ही सी चीजें होनी चाहिए, जिसके साथ साथ लर्निंग आउटकम भी होना जरूरी है. आपकी हर एक्टिविटी, हर सेशन प्लान शुड बी अटैच्ड विद द लर्निंग आउटकम्स. और आपके मल्टीपल आउटकम होने चाहिए. आप एक प्ले सेशन से आपके मल्टीपल, आपका आउटकम हो सकता है बच्चे की फिटनेस इंप्रूव करना, बच्चे को कुछ एजुकेशनल अचीवमेंट देना, उनको वैल्यूज, कॉपरेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, काइंडनेस, कॉपरेशन, एडजस्टमेंट, ये सब सोशल वैल्यूज भी आपको डेवलप करनी होती हैं. उनका हेल्थ भी आपको इम्प्रूव करना है. सो इन सब चीजों को आपको ध्यान रख के आपके पास मल्टीपल आउटकम्स के लिए आपको प्लान होना चाहिए. फिर आप फ्री प्ले से स्ट्रक्चर्ड प्ले की तरफ बच्चों को ले जाइए, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स की तरफ ले जाइए. धीरे धीरे इट शुड बी ए प्रोसेस सो दैट उसकी हैबिट डेवलप हो, और हैबिट डेवलप होगी तो वो एक कल्चर डेवलप होगा, वो खेलेगा, वो जाके अपनी सोसाइटी को भी स्पोर्ट्स में इंगेज करेगा. तो आपको इस तरह के प्लान बनाने चाहिए, जो लॉन्ग टर्म प्लान हो, ईयरली प्लान हो, और वो ईयरली प्लान फिर छोटे छोटे मंथली और वीकली प्लान में डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए.
आप अपनी प्लानिंग में सभी लोगों को इन्वॉल्व करें। आप जो भी प्लानिंग करें वो आप जो हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी CBSE है, आपकी NCERT है, उनके जो ट्रेंड प्लान्स हैं उनको मैच होना चाहिए, उनके साथ डेट्स क्लैश नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी खेलो इंडिया की स्कीम है उनके साथ मैच होनी चाहिए। और हमारा फिट इंडिया स्कूल वीक होता है, हमारे खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम होते हैं, इंटरनेशनल योग डे होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। इन सब के साथ आपका जो प्लान है वो मैच करना चाहिए, तभी आपका प्लान सक्सेसफुल होगा। इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। देन हमें जो एज अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स हैं, रिसोर्स हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। हमें वी नीड टू प्रोवाइड एम्पल इक्विपमेंट्स। इफ द इक्विपमेंट्स आर नॉट अवेलेबल वी नीड टू अरेंज देम। हमें कहीं से अरेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। अरेंज नहीं होते डेवलप करने की कोशिश करिए, और नहीं होते हैं तो फिर भी हमें जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर हम उसमें इन्वॉल्व होंगे तो हम उनको कर सकते हैं। फिर हम जो क्लास साइज है उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें मल्टीपल स्टेशन एट ए सिंगल, आप एक स्टेडियम को कई एरिया में डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे एरियाज को प्लान कीजिए, उनके अंदर एक्टिविटीज प्लान कीजिए, और ताकि बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा वेरिएशन मिले, ज्यादा चॉइसेस मिले, ज्यादा चांसेस मिले, तो बच्चा ज्यादा खुश होगा, ज्यादा इन्वॉल्व होगा, ज्यादा सेटिस्फाई होगा, और उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी का जो एम है वो अचीव करने में हम बहुत हद तक सक्षम होंगे। So with this, I finish my talk, and I thank all the participants. I thank the organizers, and the house is open for question and answer. If you have any query, doubt, confusion, question, you can ask. I'm here to present in front of you. Yeah, thank you so much, sir, for wonderful delivery. Now, there are many questions, sir, as your session was very interesting. So, there are a lot of questions actually. Okay. So, yeah, I'll take first question, sir. Yes. आप इसको अनशेयर कर लीजिए ताकि आपका वीडियो आ जाएगा मेन में। Okay. Yes. So, sir, the first question is, shall I take question, sir? Yes. Yeah, okay. So, sir, the first question is, till what age a child should be allowed to take part in multi-sports? To take part in Multi-sports. multi-sport. Yeah. Up to what age? Yes. Look, multi-sport means up to when the child reaches to class standard of 9th to 10th, he should play multi-sport. He should have a experience of different sport, so that क्योंकि अगर एक स्पोर्ट में बच्चा खेलता है तो उसकी एक टाइप के कंपोनेंट डेवलप होते हैं, लेकिन अगर 3-4 आप जैसे आप फुटबॉल खेलते हो तो समटाइम अगर आपकी वो मसल भी, आप वो मूवमेंट भी कर जाते हो, दैट इज नॉट फुटबॉल में लेग स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन कभी कभार गेम की सिचुएशन ऐसा डिमांड करती है कि आपके अदर कंपोनेंट भी यूज हो जाते हैं। तो वी अप टू द मिडिल क्लास और क्लास 9 to 10 वी शुड प्रोवाइड मल्टी स्पोर्टिंग एक्टिविटी। कम से कम 4-5 गेम का एक्सपोजर बच्चे के पास होना चाहिए ताकि उसका मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हो सके उसके ऊपर, तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेगा। और उसके बाद आप उसको एक स्पेसिफिक डिपेंडिंग उन 3-4 गेम में से वो किस स्पोर्ट में अच्छा है, उसकी डिपेंडिंग अपॉन उसकी हाइट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी गेम की रिक्वायरमेंट क्या है और किस में वो टैलेंटेड है, ऑन द बेसिस ऑफ that you can direct that particular child on towards a particular sport. Yes. यहाँ तो चला गया था। Hello. Yeah. Yes. Yeah. Thank you so much, sir. Now I'll take next question. Yes. सर क्वेश्चन है कि बहुत सारी जगह पेरेंट्स बच्चों को ट्रेनिंग में नहीं भेजते हैं या बच्चों को जो एक्टिविटीज है उसमें इनकरेज नहीं करते हैं, तो सर प्लीज सजेस्ट दैट हम लोग उनको कैसे, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेटअप करें
क्योंकि आपने बहुत से, जैसे आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी, पहले कोई लोग भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन जब रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं तो एवरीबडी वांट्स टू कम। तो आप कुछ ऐसे काम स्कूल में कीजिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाइए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स के अलग अलग कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कोई सेफ्टी की वजह से नहीं देना चाहता, ठीक है, कोई सोचता है वेस्ट ऑफ टाइम है। आप उनको कन्विंस कीजिए, आप उनको बताइए कि अगर आप उनको रिसर्चेस दिखा सकते हैं, एविडेंस दिखा सकते हैं, और स्पोर्ट एक ऐसा माध्यम है, रातों रात स्टार बन जाता है। किसी ने 1 सेंचुरी, उसको कोई नहीं जानता, आज उसने 1 सेंचुरी मार दी और वो रातों रात स्टार बन गया। आज एक गोल मार के वो रातों रात स्टार बन गया, ठीक है। तो दैट इज पॉसिबल। आज स्पोर्ट्स ऐसी इंडस्ट्री है, कबड्डी देखो, स्पोर्ट को कोई नहीं जानता था, लेकिन दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। तो आप पेरेंट्स को बताइए, अगर आप उसको कैरियर भी, अगर आप उसको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनाना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए भी आजकल देखिए रेज्यूमे में वो लिखते हैं कि क्या आपके पास कोई स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं, क्या आपके पास स्पोर्ट्स का कोई एक्सपीरियंस है, क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। क्योंकि आप बच्चों को एक इंजीनियर तो बना देंगे, लेकिन उसको इंजीनियर के अपने वर्क के प्लस अलावा उसको अपनी सोशल लाइफ में भी जाना है, उसको मार्केट में भी जाना है, उसको दूसरे लोगों से कोऑपरेट भी करना है, एडजस्टमेंट भी करना है। तो स्पोर्टिंग फील्ड इज द बेस्ट प्लेस टू लर्निंग ऑल द लाइफ लेसन्स। सारे लाइफ लेसन है, एडजस्टमेंट है, कोऑपरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, दूसरे से कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, ये प्ले फील्ड पे हम बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो दिस वे यू कैन कन्विंस देम कि अगर बच्चा आपका फील्ड पे आता है तो अदरवाइज वो आपको मोबाइल में टाइम वेस्ट करेगा, टीवी में टाइम वेस्ट करेगा। इससे बेटर है कि वो जो भी खाना खा रहा है उसको वो यूज करे, उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, उसका पोस्चर अच्छा होगा, उसकी फिटनेस अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, वो देखने में अच्छा लगेगा। और उसके एकेडमिक्स के तो बहुत रिसर्चेज हैं कि और ये रिसर्चेज से प्रूव भी हुआ है कि अगर आप 10 to 15 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी, अगर कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो इट इम्प्रूव्स 2 hours ऑफ योर कंसंट्रेशन इन योर क्लासरूम सेटिंग। तो इस तरह की कंडीशंस आप पेरेंट्स को बता सकते हैं। दे विल बी, आई होप दे विल बी कन्विंस्ड इन दिस वे। Yes, thank you, sir. Now I'll take next question. Yes. So, sir, can you please tell us how to influence highly active kids which doesn't want to involve in sports activities? Can you pardon? Yeah, sir. Can you please tell us how to influence highly active kids which doesn't want to involve in sports activities? Highly एक्टिव बच्चे जो बहुत एक्टिव होते हैं स्पोर्ट्स में, मतलब बट दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, तो उनको कैसे इन्फ्लुएंस करें? बच्चा हाईली हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव बच्चा है, लेकिन वो स्पोर्ट्स वैसे नहीं खेलना चाहता है। हाँ, अच्छा। मतलब वो बहुत एनर्जी बहुत है बच्चे में, लेकिन वो स्पोर्ट्स, मतलब उसको स्पोर्ट्स की तरफ चैनलाइज कैसे करेंगे? इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हाँ, देखो, दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर। आप उनको कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, कुछ स्पोर्ट की मूवीज आप जैसे कई बार स्कूल्स होते हैं, उनके पास ऑडिटोरियम्स होते हैं, तो उनके अंदर आप कुछ अच्छे स्पोर्ट की मूवी आप उनको दिखा सकते हैं। आप उनको कई बार कोई अच्छे टूर्नामेंट्स, कोई मैच आपके सिटी में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वो आपको उसको दिखाने के लिए ले जा सकते हैं। और फिर कुछ उसको थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन भी आप उसको दीजिए, क्योंकि अगर बच्चा हाईली एक्टिव है तो ही मे बी वेरी यूजफुल। अगर उस टैलेंट को अगर हम अच्छे से यूज कर पाए तो वो उस बच्चे के लिए भी अच्छा है, और एज ए टीचर आपके लिए भी अच्छा है, और एज ए नेशन हम सब के लिए अच्छा है कि वो टैलेंटेड है, तो उसकी एनर्जी, उसका टैलेंट शुड बी बेस्ट यूटिलाइज। सो वी नीड टू गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू दैट काइंड ऑफ चाइल्ड। उसके पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं और उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं बाय टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। इसमें एक और चीज भी है जो मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस से करता हूँ। काफी बार क्या होता है, बच्चे बहुत हाइपर भी होते हैं, लेकिन कभी कभी मैंने देखा हूँ कुछ बच्चों को स्कूल में ऐसे माहौल बना देते हैं, या तो आपको जीतना है, अगर कोई बच्चा हार गया है तो आप उसको सेलिब्रेट ही नहीं करते हो, तो कुछ बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर होता है। अगर वो प्रेशर ना रहे तो काफी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसे होता है कि बच्चों को पसंद ही नहीं है कि आप उसको unnecessarily उसको कंपटीशन में डाल रहे हो एंड ऑल दैट, सो दैट आल्सो नीड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कल्चर ऑफ द स्कूल। सो हाइपर एक्टिव वो एनर्जी तो है, लेकिन वो फिर सोचता है कि मेरे को नहीं जीतना तो फिर क्यों खेले।
आई थिंक माहौल भी होना चाहिए। हाँ, हमने वो बीच में बात भी की थी कि हमेशा विनिंग ही नहीं होना चाहिए, बच्चे को अपने पर्सनल बेस्ट से compete करने की हैबिट हमें डालनी चाहिए ताकि वो डिटेक्शन नहीं हो, स्पोर्ट से दूर ना भागे। ठीक है, थैंक यू। Yes, next. Yeah, anything? sir, thank you. Now, the next question is, can you give some ideas how to manage free play? Because physical education teacher is answerable if child is hurt. So, ये participants है जिनका question है, sir, please reply. देखिए, injuries are sometimes we say injuries are the ornament of sporting field. ये हमारे गहने हैं, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यस, आपको सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फ्री प्ले में आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हमने बहुत सी जगह देखे हैं कि स्कूल्स में वो ऐसी जगह आप जो इक्विपमेंट लगाते हैं वो एजी नहीं होते, जैसे आपने वुडन लॉक लगाए हैं तो वो उनमें एजेस नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चा उससे हर्ट हो। ठीक है, वो राउंडेड होनी चाहिए, कुछ आप सॉफ्ट उस पे अगर कुछ पैडेड एरिया बना सकते हैं तो वो आप बनाइए। ठीक है, नॉर्मली आप अगर जैसे हमने एक स्लाइड में देखा था हॉप स्कॉच के और या कई फ्लोर के ऊपर मार्किंग है, तो इस तरह की मार्किंग आप कर सकते हैं और तो उसमें भी बच्चा को इंजरी होने के चांसेस कम हैं। और थोड़ा सा सुपरविजन अगर आप कर सकें फ्री प्ले के ड्यूरेशन में भी, ताकि बच्चे ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके नॉर्मली इंजर्ड हो जाते हैं, तो उस वे से आप उनको बचा सकते हैं। आई थिंक सैंड पिट्स जो है और सेफ्टी जैसे आपने बताया वो काफी चीजें काफी हेल्पफुल है बच्चों को। हाँ, सैंड पे भी आप उनको फ्री प्ले के लिए एक्टिविटीज दे सकते हैं। Okay, thank you, sir. Now the next question is, like as you have mentioned during presentation, we have to organize the multiple activities in single period. So how it is safe for the students? Yeah, safety is the priority. I know safety is the priority. Look, when you are planning multi-station activities, आपकी प्लानिंग ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आपको स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास में हमारे पास 25-30 स्टूडेंट्स आ रहे हैं या 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फिर उनको आपको कितने ग्रुप में, अगर आपने 10 स्टेशन बनाए हैं, 50 बच्चे हैं तो 5-5 स्टेशन हैं, तो आप उनको और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनके इंजरी के चांसेस कम होंगे। तो आपको जब भी मल्टी स्टेशन प्लानिंग करें तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, कौन सी लेवल का बच्चा आ रहा है, क्या इसमें गर्ल्स भी हैं, क्या इसमें सिर्फ बॉयज हैं या गर्ल्स बॉयज दोनों हैं। ठीक है, और उनका एज लेवल, क्या नर्सरी क्लास आ रही है या 6th क्लास आ रही है, कौन सी क्लास के लेवल के बच्चे आ रहे हैं, फिर आप उसी लेवल की एक्टिविटी प्लान। प्रॉब्लम कहाँ होती है, आपने एक्टिविटी प्लान कर ली क्लास 6th के लिए और आपके पास मिसमैच हो गया, आपके पास 3rd क्लास आ गई, आपने इक्विपमेंट्स रेडी कर लें और आपने कहा चलो इसी में ही बच्चे खेल लेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वहां पे क्योंकि उनका एक्टिविटी का लेवल बढ़ गया तो वहां पे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, और फिर बच्चों को पहले से, जैसे हम कई बार कार्ड्स बना देते हैं, वी कैन पेस्ट दोज कार्ड्स ऑन द बोर्ड, या फिर आजकल जो LMS सिस्टम आता है, आप उनके स्कूल में वेबसाइट, आजकल अगर आपकी पब्लिक स्कूल है तो वेबसाइट पे भी भेज सकते हैं, या क्लासरूम के बाहर कार्ड्स भी लगा सकते हैं कि इस क्लास का आज ये एक्टिविटी होगी। तो उनको पता है कि ये एक्टिविटी, तो थोड़ा सा माइंड उनका मेकअप है, तो उनको स्किल का भी पता रहेगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट के पास भी इंफॉर्मेशन है हम क्या करने वाले हैं, आपकी मार्किंग्स भी रेडी हैं, आपके इक्विपमेंट्स भी रेडी हैं, तो सब चीज प्रॉपरली प्लान्ड है, तो फिर आपके जो इंजरी के चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं, आपकी एक्टिविटी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सकती है, और जो आप लिमिटेड टाइम में आपको बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, उनको फन, एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन, एट द सेम टाइम लर्निंग भी उनकी इम्प्रूव हो सकती है। तो इस तरह हम उसको मैनेज कर सकते हैं। Yes, thank you, sir. Yeah. So I'll take another question that is related to that organizing the students only. Okay. So like I would like to know how can we give motor skill practice to every different individual at the same time. So
one of participant he wants to ask this question. Okay, like you have a class of 50 students, so provide 50 different drills. It will be very complicated, and so you can have a plan. Suppose you are planning for a fitness training, so you can divide them into 10 different groups, 5 groups in each station, and one station is doing push-up. At another station they are doing jumping jacks. At another station they are doing sit-ups. At another station they are doing squats. Or at another station, means you can plan different activity, and in different station skipping ropes can be done. Okay, so this way you can have different station, and on every station 5 students are there. Okay, now you use a whistle. Okay, every student, आप उनको एक डेमो बता सकते हैं कि इस स्टेशन पे क्या करना है, और आप एक छोटा सा बोर्ड लिख सकते हैं कि स्टेशन नंबर 1 पुशअप, स्टेशन नंबर 2 जंपिंग जैक, स्टेशन नंबर 3 स्किपिंग द रोप, स्टेशन नंबर 4 स्किपिंग द रोप, लाइकवाइज स्क्वाट्स, जो भी आपने प्लान किए हैं आप उसके अंदर प्लैंक्स, कहीं आप प्लैंक्स दे सकते हैं, हेड प्लैंक्स दे सकते हैं, तो आप 10 स्टेशन पे छोटे छोटे स्लिप में लिख दीजिए. ठीक है, फिर आप उनको बोलिए ओके फॉर 1 मिनट यू विल डू दिस, और या आप लैडर भी लगा सकते हैं किसी स्टेशन पे, आप लैडर ड्रिल्स भी कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर आप आफ्टर 1 मिनट यू विल चेंज, फर्स्ट स्टूडेंट विल गो टू द सेकंड, सेकंड विल गो टू द थर्ड, थर्ड विल गो टू द फोर्थ. तो आप उसमें 5 सेकंड का टाइम दीजिए टू शिफ्ट, और या 10 सेकंड का टाइम दीजिए फ्रॉम शिफ्ट फ्रॉम 1 स्टेशन टू अनदर. तो इस तरह वो बच्चे 10 स्टेशन को 10 मिनट में हर स्टेशन को कवर कर लेंगे. और आप हर बच्चे को देखिए, इट इज वेरी मच नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हर स्टूडेंट को डिफरेंट एक्सरसाइज दें. 50 स्टूडेंट वैसे प्लान कर सकते हैं, बट इट इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड. इंस्टेड ऑफ 50 डिफरेंट देने से अच्छा है कि आप या तो आपके पास 3-4 सपोर्टिंग स्टाफ हो, कि आप 10 बच्चों को आप ले जाइए, 10 को आप ले जाइए, या फिर 2-3 स्टाफ हो कि चलो 15 मेरे पास है, 15 आप, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, या फिर अगर आपके पास छोटी क्लास है और आपके पास कोई वॉलंटियर स्टूडेंट्स हैं सीनियर क्लास के, क्लास 11th 12th के, यू कैन कॉल देम और उनकी हेल्प लेके आप थोड़ा सा इस तरह को इसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव इफ यू डू इन दिस वे. यस, थैंक यू सर. एक क्वेश्चन और है, दैट इज कि कुछ बच्चे जो हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, बच्चों का जो प्लेइंग टाइम है उसको इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में टैलेंटेड होते हैं स्पेसिफिक गेम्स में, तो सर उन बच्चों को हम कैसे डील करें? थोड़ा सा वॉइस हैंग हो गया, कैन यू रिपीट? सर वो कह रहे हैं, गंगवार सर कह रहे हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं बड़े टैलेंटेड होते हैं, तो उन बच्चों को हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे होते हैं, वो सारे बच्चों के साथ डील करें कि उनको अलग से डील करें, वो कुछ. हाँ जी, who are good in a particular sports. Yes. There are few student जो extraordinary होते हैं, तो आप उनके साथ अगर normal class के साथ उनको कराएंगे तो they will not enjoy and they will not eventually I should say they will not respect you अगर आप रोज उनका time इस तरह से kill करेंगे. ठीक है, and that is not in the school. अगर आप colleges में हो, चाहे university में हो, चाहे national camp में हो, national camp में भी तो आपको उनको सेग्रीगेट उनके ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे. आप एक उनको बिगिनर्स का ग्रुप बना सकते हैं, एक मीडियम लेवल का ग्रुप बना सकते हैं, एक एडवांस ग्रुप बना सकते हैं, और एक फिर सुपर एडवांस ग्रुप, हाईली ट्रेन्ड ग्रुप. जैसे हम हमारे यहाँ पे हम समर कैंप लगाते हैं, वी हैव ऑलमोस्ट 400-500 स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम उनके 4-5 ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, एक हमने किंडरगार्टन जो 3 से 5 से 6 साल के बच्चों का एक ग्रुप हो गया, और फिर उसमें थोड़े से और जो बड़े बच्चे हैं ले सकते हैं, या फिर एज के हिसाब से भी आप उनका डिवीजन कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे तो आपके पास एक ही क्लास आती है, तो हम एक ही तरह के बच्चे लेते हैं, तो आप उनको बिगिनर्स और मीडियोकर्स और एडवांस और हाईली एडवांस इन 3-4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं, और फिर अलग अलग उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, सो दैट दे हैव मोर सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड एवरीबडी विल अचीव समथिंग. Yes. Yeah, thank you, sir. Sujit sir, if you have any question, there are a couple of questions which I noted down.
किसी ने ये पूछा था कि जो वार्म अप और कंडीशनिंग अलग अलग, जैसे हमने बताया था 40 मिनट्स पीरियड में, वार्म अप और कंडीशनिंग क्या डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए? मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ ही बोल देता हूँ तो आप आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे गर्ल्स है, बहुत सारे गर्ल्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके लिए कोई अलग तरीके से करना कैसे कर सकते हैं? ये 2 क्वेश्चन अगर आप ये। जी जी, मैं आपका पहला क्वेश्चन पहले लूंगा कि वार्म अप और कंडीशनिंग। देखिए, वार्म अप एंड कंडीशनिंग दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट। कंडीशनिंग मतलब आपका फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी बॉडी को कंडीशन करने के लिए, आपको किसी भी स्पोर्ट की को खेलने के लिए आपकी बॉडी को कंडीशन करना है। मतलब उस स्पोर्ट्स के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, जो बेसिक फंडामेंटल, जो उसके मोटर स्किल्स हैं, उनको डेवलप करना इज नोन एज कंडीशनिंग। सो कंडीशनिंग करने के लिए आपको वार्म अप चाहिए। वार्म अप तो आपको चाहे आपको कंडीशनिंग का सेशन हो, उसमें भी आपको वार्म अप लगेगा, करना पड़ेगा। और चाहे इफ इट इज योर ट्रेनिंग सेशन, इट इज योर, आपको स्किल को इम्प्रूव करना है, हर सेशन में वार्म अप इज ए डिफरेंट थिंग। वार्म अप तो आपको करना ही है, इट इज एज गुड एज योर ट्रेनिंग। तो वार्म अप आपको, वार्म अप एंड कंडीशनिंग दीज आर टू डिफरेंट। चाहे वो आपका फिटनेस का सेशन हो, चाहे आपका वो स्पीड का सेशन हो, एंड्योरेंस का हो, स्ट्रेंथ का हो, एजिलिटी का हो, कोऑर्डिनेशन का हो, फ्लेक्सिबिलिटी का हो, आपका स्किल ट्रेनिंग का हो, व्हाटएवर सेशन इट इज देयर, इट शुड बी परसीव्ड बाय वार्म अप सेशन। ठीक है, वो वार्म अप विल, जनरल वार्म अप विल बी सेम, बट स्पेसिफिक वार्म अप विल डिफर फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी। So this you need to understand. Now look, girls, yes, we have observed in where negligence is there, or student teacher ratio is very high. In those cases you cannot give due importance. आप बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं और उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो आपके ड्रॉप आउट्स नॉट इन गर्ल्स, मेल फीमेल दोनों में रहेगा। दूसरा फिर एक कांस्टेंट ये भी रहता है कि अगर आपके पास फीमेल टीचर हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल भी हैं, तो भी वो ड्रॉप आउट रेट थोड़ा कम हो सकता है। कई बार आपके पास फीमेल फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं भी होते हैं, तो सो यू कैन यूज सम ऑफ योर अदर सब्जेक्ट टीचर, समटाइम you can use your female senior students who are involved in sports. They can counsel them, they can take care of such kind of students to bring them again. लेकिन आप ये, जब बच्चा ड्रॉप आउट हो चुका होता है तो वो स्टेज बहुत आगे पहुंच गई, आपको उसको बहुत पहले ही पकड़ना है। मतलब ये तो वो मेजर डैमेज हो चुका है, क्योंकि वो ड्रॉप आउट एक दिन में नहीं हुआ है, धीरे 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 उसका डैमेज हुआ है। तो जिस समय आपको वो बच्चा नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, उस समय आपको उस सिचुएशन को असेस करना चाहिए, और उसी समय आप उसकी अगर रेमेडी करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा होगा, उसको आप जल्दी हील कर पाएंगे और उस बच्चे को आप दोबारा से फील्ड पे लाने में आप उसको आपको हेल्पफुल रहेगा। जी, और आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट एक क्वेश्चन आया कि रिक्रिएशनल गेम कौन सी एज तक करना चाहिए? ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या रिक्रिएशनल गेम का कोई एंड है खेलने का, कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए? देखो जी, रिक्रिएशनल गेम तो लाइफ लॉन्ग है। इवन एक 80 इयर्स का लोग भी वी वांट रिएक्शन, हम क्लब हाउस में उनके लिए एंगेज करते हैं। तो रिक्रिएशनल गेम होते हैं टू ब्रेक द मोनोटोनी। कभी कभार हमारी ट्रेनिंग एक ही बड़ी स्ट्रेनियस ट्रेनिंग चल रही है, कुछ टाइम नहीं मिल रहा है, बच्चा बहुत ही बॉडी एकदम टाइट हो गई है और रिकवरी का टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम उसको बच्चे को पूरा रिलैक्स नहीं कर सकते। हम एक सेशन या एक दिन उसको रिक्रिएशन देते हैं तो कि वो इंजॉय भी करे और उसकी बॉडी रिलैक्स भी हो। ठीक है, तो वो होता है रिक्रिएशन। और एक होता है लीड अप एक्टिविटी। लीड अप एक्टिविटी में हम उसको दूसरे काइंड की, सपोज आप फुटबॉल के प्लेयर हैं, आपने आज जैसे फुटबॉलर्स हैं या वॉलीबॉल्स हैं, वो लेग ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत करते हैं। आपने लेग ट्रेनिंग की है, अगले दिन आपने उससे पहले मैच खेला है, तो नीचे लोअर वर्कआउट हुआ, तो नेक्स्ट डे हम कहते हैं चलो लेट अस गो फॉर ए बीच वॉलीबॉल, लेट अस गो फॉर स्विमिंग। तो दैट इज अ काइंड ऑफ रिक्रिएशन, ए काइंड ऑफ लीड अप नहीं कहेंगे लेकिन रिक्रिएशन उसको बोलेंगे। तो रिक्रिएशन इज जस्ट टू प्रोवाइड ए एक्टिव रिकवरी। हम इसको इसकी कोई एज नहीं होती है। हम जब भी हमें मोनोटोनी फील होती है, जब भी हमारी ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा
lethargy फील होती है तो वी नीड टू रिक्रिएट. कभी कभार हम अपने ही फील्ड पे कुछ रिक्रिएशनल गेम्स करवा देते हैं, कभी वार्म अप में भी हम रिक्रिएशनल गेम करवाते हैं स्टूडेंट को एक्टिवेट करने के लिए, थोड़ा वैरायटी देने के लिए. तो देयर शुड नॉट बी एनी एज. रिक्रिएशन तो सभी को जरूरत रहती है. राइट. या But so it's mostly बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट आई थिंक ये सारे थोड़े रिलेवेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आगे नेक्स्ट वीक को आंसर होने वाले हैं कि छोटे बच्चों को क्या करना है, बड़ों को क्या करना है. आई थिंक वी हैव सम दैट नेक्स्ट वीक को. अच्छा, एक चीज है जो बहुत सारे लोगों का ये आ रहा है कि क्या कुछ हैंडआउट्स मिल सकता है उनको एक्टिविटीज के लिए. ये काफी सजेशंस हमारे पास आ रहे हैं. तो हम ये सारे जो 21 दिन का, ये 25 डेज का जो खत्म हो जाएगा, आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि वो हम कुछ बनाएंगे जो छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और अलग अलग एज ग्रुप्स के, तो हम सारे के साथ थोड़ी सी शेयर करेंगे. ये मैं बताना चाहता हूँ. अच्छा, काफी बार मैं ये देख रहा हूँ गंगवार साहब, ये सारे खत्म हो जाए तो आई जस्ट वांट टू टेल दैट पीपल आर आस्किंग टू क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल दैट. दोस आर नॉट द ऑफिशियल व्हाट्सएप. Yes. Yeah. And you might want to say that at the end of 25 days, we'll also have a certificate. So basically, we'll have a evaluation at the end of 25 days, and so there'll be certification program. So people should take it a little more. Yeah. Thank you. So that participation certificate and that after that, like how we'll evaluate and everything will be informed to the participant and we'll do it. So I think we should wind up the session, as like we have to start another session as well. So Yes, sir. yeah. Sanjeev sir, anything would you like to mention? It's a wonderful session, sir. Enlightening, really enlightening one. Yeah. So once again, see, it was very interesting and very realistic, I'll say. बहुत ज़्यादा. जो बेसिक डाउट्स होते हैं वो जो ग्राउंड लेवल के, जो बेसिक ग्रासरूट्स लेवल के होते हैं, वो आपने क्लियर किए. तो that was really helpful for all the physical education teachers and those who are struggling to organize or manage the students when the number is big and the teachers are very less, physical education teachers and coaches. So thank you so much, sir, for sharing time with us and sharing your valuable thoughts. You have connected us to Hungary. You have connected your all the abroad experience with us. So thank you so much, sir. And thank you very much, Dr. Gangwar and all your team. You have nicely arranged the sessions. Sujit, Dr. Kishore, Sanjeev, and all your teams for providing me this opportunity to interact with such professional friends. And it is really very enjoyable time to interact with all of you. Thank you very much. Janjariya sir, आपके लिए सबसे perfect अभी compliment आया कि this is the most realistic session. सबसे realistic है session. So thank you so much. I think you have made it very ground level का, grassroots level के जो लोगों का problem है, वो काफी चीजें address हो गई. I think very realistic. That's what people say. So thank you so much, sir. Thank you, participants, and just information for all the participants. Actually, we have crossed more than 2,100 participation in this session. So that's really a great positive sign for us, and it's because of all our renowned or esteemed speakers. People want to listen them and they just want to get something out of them. So thank you so much, Janjariya sir, and definitely will be in connection. We'll definitely get you back. And thank you so much, Sujit sir, Dr. Sanjeev Patil sir, and all the participants for joining us. Thank you all the participants also. Thank you very much. They have to join at 5 o'clock. 5 o'clock please join at 5 o'clock for the international session. Join through the same link. Online आप जाइए और same link के through आप आइए. 5 o'clock को we have a very interesting session of international speaker at 5 o'clock. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Thank you. Okay. Namaste.